আর শুরুতেই নজর রাখা যাক পেহেলগাঁয়ে জঙ্গি হামলার সেই হামলার পর এবার বদলা নেওয়া শুরু ভারতের। উপত্যকায় অল আউট অ্যাকশনে ভারত। জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে অপারেশন সেনার একের পর এক জঙ্গির বাড়ি ধ্বংস। উপত্যকা জুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। জঙ্গিদের সমর্থন করায় আটক শতাধিক। দক্ষিণ কাশ্মীর জুড়ে তল্লাশি অভিযান জারি। পেহেলগাঁয়ে হামলা এবার বদলা। উপত্যকায় অল আউট অ্যাকশনে ভারত। জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে অপারেশন সেনার একের পর এক জঙ্গির বাড়ি ধ্বংস। উপত্যকা জুড়ে তল্লাশি সেনার। জঙ্গিদের সমর্থন করায় আটক করা হয়েছে শতাধিক। দক্ষিণ কাশ্মীর জুড়ে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। নজরে 14 জঙ্গি সহযোগী। 14 কাশ্মীরি যুবকের তালিকা এবার তৈরি করলো গোয়েন্দারা। লস্কর হিজবুল মুজাহিদিনের সঙ্গে যোগ সন্দেহভাজনদের। পেহেলগাঁওয়ের 5 জঙ্গিকেও সাহায্য এই 14 জনের। 14 জন জঙ্গির সহযোগী তারা কিন্তু এবার নজরে। 14 কাশ্মীরি যুবকের তালিকা তৈরি করলো গোয়েন্দারা। পেহেলগাঁওয়ে 5 জঙ্গিকেও সাহায্য এই 14 জনের। জঙ্গিদের গ্রাউন্ড লেভেল সাপোর্ট দেওয়ার অভিযোগ। 14 জনের খোঁজে অনন্তনাগ, পুলওয়ামায় চিরুনি তল্লাশি। সন্দেহভাজন অনেকেরই বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে নিরাপত্তা রক্ষীরা। সন্দেহভাজনের তালিকা: আদিল রহমান ডেন্টু, আসিফ আহমেদ শেখ, এহসান আহমেদ শেখ, হ্যারিস নজির, আমির নজির ওয়ানি, ইয়াওয়ার আহমেদ ওয়াট, আসিফ আহমেদ খান্ডে, নাসির আহমেদ ওয়ানি, শাহিদ আহমেদ কুট্টে, আমির আহমেদ ডার, আদনান সাফি ডার, জুবেইর আহমেদ ওয়ানি, হারুন রশিদ গানাই, জাকির আহমেদ গনি। এই 14 জন নজরে। 14 জঙ্গি নজরে। 14 কাশ্মীরি যুবকের তালিকা এবার তৈরি গোয়েন্দাদের। লস্কর হিজবুল মুজাহিদিনের সঙ্গেই যোগ রয়েছে সন্দেহভাজনদের। ভারত পাক সীমান্তে উত্তেজনার মধ্যেই সমুদ্রের রণহুঙ্কার। আরব সাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর মহড়া। আরব সাগরে পরপর মিসাইলের গর্জন। যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করতে দূরপাল্লার মিসাইল টেস্ট ভারতের। দেশের সামরিক শক্তি প্রদর্শন। যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি ভারত। ভয়ে কাঁপছে পাকিস্তান। দোষী ও ষড়যন্ত্রকারীদের কড়া জবাবের হুঙ্কার। মন কি বাত অনুষ্ঠানে পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা নরেন্দ্র মোদীর। পেহেলগাঁওয়ের ঘটনা দেখে সব ভারতীয় রক্ত ফুটছে। বিচার হবেই, দেশবাসীকে বার্তা प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা সাংকেতিক হুমকি দিয়ে কিছু হবে না। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে তাদের সেই ভাষাতেই জবাব দিতে হবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধারের সময় এসে গেছে এক স্যান্ডেলে। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার কড়া নিন্দায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জঙ্গিদের গুলিতে রক্তাক্ত পেহেলগাঁও। বৈশারণ এলাকায় পর্যটকদের গুলি, আর সেখানে সার্চ অপারেশন শুরু করলো এনআইএ।
वजारत दाखिला के फॉर्मल ऑर्डर्स के बाद बिलाखिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यानी NIA ने जो पहलगाम टेरर अटैक का केस है वो अपने जिम्मे लिया है और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि एक फ्रेश FIR जो है NIA ने दर्ज की है और जिसके बाद NIA की टीम इस वक्त पहलगाम में ही है। और इस सिलसिले में हम आपको बता सकते हैं कि जो ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन है, एंटी टेरर ऑपरेशन है पहलगाम की वादियों में, वो अब भी जारी है और उसके लिए जो मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज है वो शामिल हो चुकी है। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है इनको सील कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के नाके हैं वो यहाँ पर कायम किए गए हैं और जो मूवमेंट है पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है जो बाइसरन वैली की ओर जाने वाले पॉइंट्स है। और ये भी बताया जा रहा है कि NIA इन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की बारीक बीनी से जांच करेगी। 14 जो एक्टिव टेररिस्ट है उनका लिस्ट जो है वो इजरा किया गया है और इस सिलसिले में टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए हमने देखा कि किस तरह से कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। और खासकर साउथ कश्मीर के एरियाज की अगर हम बात करेंगे, चाहे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, शोपियान डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट या फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो टेरर नेटवर्क को जो है पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश जो है वो जारी है। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशंस है वो एक अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं और ऑपरेशन जो है वो अब भी जारी है। आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। পেহেলগাঁও প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করেছে 3 বাহিনী। LOCA পাক রেঞ্জার্সের পাল্টা জবাব ভারতীয় সেনার জন্য বাংকার পরিষ্কার করছেন গ্রামবাসীরাই। সীমান্ত লাগোয়া পুঞ্চে ভারতীয় সেনার পাশে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। इस परिवार ने जो है धीरे धीरे अपना सामान जो है इस बंकर में लाना शुरू कर दिया है ताकि अगर हालात खराब होते हैं या अचानक पाकिस्तान गोलाबारी शुरू करता है तो वो अपनी जान बचा सकें। ये जो बंकर है ये जमीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बैंकर है। ये पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में तो हम इस बैंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ, हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बैंकर है ये जमीन के अंदर। कभी भी बॉर्डर के हालात खराब हो सकते हैं और हमने इसको ठीक ठाक इसके अंदर आ गए। बात करें घर की जो मालकिन, उनसे किस तरह की तैयारी की थी जी? जब गोलाबारी हुई तो हम इधर ये बैठ सा, सब कुछ रसोई ना सामान सारा कुछ इथे ही रख सा, खाना पीना गैस सिलेंडर वगैरह इथे ही रख सा। तो मतलब सामान सब तो लिए, बिस्तर से लिए, बिस्तरे भी इथे ही। एक अलग है, थोड़ी लाइट होनी चाहिए, अंधेरा होना, लाइट होनी चाहिए, नहीं था मैं सारा सामान लेट सा भी थे, रोटी भी थी बना सा। আটারি সীমান্তে পাক নাগরিকদের ভিড়। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জের আজই শেষ হচ্ছে পাক নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ। আজকের মধ্যেই ভারত ছাড়তে হবে পাকিস্তানিদের। চিকিৎসা সংক্রান্ত ভিসার মেয়াদ শেষ মঙ্গলবার। সীমান্ত দিয়ে ভারত ছাড়ছেন পাক নাগরিকরা। সীমান্তের ওপার থেকে ফিরছেন ভারতীয়রাও। बड़ा डिफिकल्ट काम हुआ, अच्छा थोड़ी काम। सही रिश्तों में मतलब बहुत दूरी पड़ गई। तो क्रिकेट किसी का आना हो, किसी का जाना, वह 2 कंट्री है जिसको एक दूसरे को अपन एनिमी शिकल से देखते नहीं। गलत का बहन, टोटली गलत है, गलत है। दुआ करेंगे आपस में भाई को जैसा रिश्ता हो, हमारा आना जाना हो, हमारी हम तकलीफ हम लोगों को। कितने दिन हो गए यहाँ इंडिया में आए हुए? यहाँ 4 महीने हो गए। तो आज वापस क्यों जा रहे हो, क्या बताया वापस जाने के लिए आपको? वापस हमारे बच्चे वहाँ से ले जाएंगे। जो श्रीनगर में हादसा हुआ, बंदे मारे गए हैं, तो गलत हुआ है? गलत हुआ है। किनको छोड़ने हैं आप? मेरी सिस्टर को। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा ही में रहने वाले हैं। तो क्यों वापस जा रहे हैं, क्या बताया? वो आने श्रीनगर में जो हमला, उसी वजह से हुकूमत का आदेश है, उसके अनुसार इसको वापस भेजा जाए। तो समय तो जो हुआ गलत, तो इससे गलत बिल्कुल गलत हुआ है। जो धर्म के नाम पे लड़ते, हाँ ये बिल्कुल गलत है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो डेडलाइन है वो आज खत्म होने जा रही है, उसी कारण आज बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी नेशनल हैं जो भारत आए हुए थे वो आज पाकिस्तान जाते हुए नजर आ रहे हैं। और लंबी कतारें गाड़ियों की जो है आप देख सकते हैं कि कोई ऑटो में, कोई कार में, जो भी उनके पास साधन है उसके जरिए वो अटारी सीमा पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ से फिर आगे जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं कस्टम इमिग्रेशन के बाद, ये सारे लोग आज वापस अपने वतन पाकिस्तान लौटेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कतार है BSF की तरफ से, यहाँ पर उनके जो पासपोर्ट हैं वो चेक किए जाते हैं और उसके बाद इन्हें आगे भेजा जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास है उन्हीं को ही
जो है बॉर्डर क्रॉस करने की जो आगे परमिशन दी जाती है। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो कि भारत में जिनकी शादी हुई है। 22 को हम आए हैं। तो वीजा कितनी देर दिन का था? 45 डेज, 45 दिन का वीजा था, 2 दिन रहे हैं बस। तो यहाँ पर कौन है जिसके पास आए थे आप? मेरी माँ, माए मदर। अपनी माँ से जुदा होना पड़ रहा है। उनके कब्र तक भी नहीं जा पाई। मेरे 2 भाई की डेथ हो गई, भतीजा जवान था उसकी डेथ हो गई, किसी को सीने से लगा के रो भी नहीं सका किसी को। दोनों सरकारों से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आम लोग जो हैं वो इसमें खराब। सरकारों से क्या कहना चाहूंगी, अमन रखे बस, अमन।